ہاں جی، آپ اپنا یہ بتائیے کہ آپ کی پڑھائی لکھائی کہاں تک ہے؟ آپ مجھے شوق کر رہے ہیں جی، جاب کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں؟ نہیں انٹرویو نہیں لے رہے ہیں، آپ کی پڑھائی لکھائی معلوم ہوگی تبھی تو اس کے بعد گفتگو ہوگی، بتا دیں آپ بولا جائے تو کیسے گفتگو کریں گے آپ، کیونکہ ابھی تک کے مناظروں سے احمدی آپ کے بعد ہوا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میری بات سنو پہلے، دین سمجھنے کے لیے کیا دنیاوی پڑھائی ضروری ہے؟ ارے بھائی پڑھائی لکھائی پوچھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کی علمی صلاحیت و قابلیت کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے، ہم آپ کا امتحان لینا مقصود نہیں ہے، جیسی آپ کی قابلیت ہوگی اسی کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ دنیاوی تعلیم نہ دی ہو کسی نے تو کیا اس میں اس علمی شخصیت میں کمی رکھتی ہے؟ آپ نے دینی تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ آپ قرآن پاک وغیرہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دینی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو نہ آتی ہو، دینی تعلیم نہ بھی ہو، تو کیا اس کے علم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، دینی اعتبار سے جاہل ہے، وہ دینی اعتبار سے جاہل ہے، اگر اس کے تعلیم نہیں ہے تو دینی اعتبار سے وہ جاہل ہے۔ اچھا، جس کو دین کی تعلیم کا علم نہ ہو، کیسے دنیاوی تعلیم نہ ہو تو دنیا کے اندر گورنمنٹ کے وہاں وہ جاہل ہے، تو اسی طرح جس کے پاس دین کی تعلیم نہ ہو تو دینی اعتبار سے وہ جاہل ہے۔ بتائیے اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں دنیا ان کو جاہل سمجھتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ شور بہت ہو رہا ہے، کس کے یہاں شور ہو رہا ہے؟ قادیانی صاحب آپ کی طرف شاید شور ہے زیادہ۔ میرے شور میں تو جاب پہ ہے نا، مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ جس کو بولیے جاہل سمجھتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا دار کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو کیا آپ نعوذ باللہ من ذالک ان کو جاہل سمجھتے ہیں؟ حضور پاک نے علم دیا تھا بغیر کسی جو ہے پڑھائی لکھائی کی، کیا آپ کو بغیر کسی پڑھائی لکھائی ارے وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا۔ ارے بھائی اس کی تو ویڈیو بننی چاہیے تھی۔ ہاں ریکارڈنگ کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ کوئی اور آیا ہے اب۔ چلیے ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ جی ارے آ گئے، واپس آ گئے وہ۔ آ گیا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی شارٹ بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ یہ مختار بھائی آپ ان سے بات کر لیں، آپ کے انڈیا کے ہیں، آپ کو زیادہ مسئلہ آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ السلام علیکم۔ ارے واہ بھائی واہ، اسماعیل بھائی بھی آ گئے۔ میرے بھائی کیا گئے اسماعیل بھائی؟ میں تھوڑا سا مصروف تھا، چلو یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بات کریں گے آپ سے۔ جی بتائیے کون سے بھائی ہیں؟ جی شاہد بھائی ہیں ہمارے۔ شاہد بھائی صاحب کیا چل بولو ٹھیک ہو؟ جی سب بڑھیا ہے، دعا ہے۔ ہم آپ سے دلیل لے آئے ہیں۔ بڑھیا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑھیا رکھے، ہمیشہ خوش و باش رکھے۔ یہ پنجابی زبان بول رہے ہیں کیا؟ ہاں پنجابی اردو میں بات کی جائے اچھا ہمیں بھی سمجھ میں آئے گی۔ اچھا اردو بولنی ہے، اچھا ہاں بولیے۔ میں نے کہا آج اپنا ابھی تو افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم افطاری کا انتظام کر رہے تھے، اگر آپ نے افطار کرنا تو ہمارے پاس آ کے روزہ کھولیے۔ افطاری سب کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں، آپ گھبرائیں نہ، بالکل نہیں کرتا۔ ابھی ہم آپ کی تلاش میں آ جائیے۔ چلیے بھائی، کون سا موضوع تھا؟ وہ موضوع کیا، ہم تو ماننے کو تیار ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بتائیں کہ ہم کیا مانیں مرزا غلام احمد قادیانی؟ ہاں چلیے تب تک یہی سے بات شروع کی جائے۔ ایک اور صاحب ہے آج تو ماشاءاللہ بس لطف آنے والا ہے۔ بتائیے آپ پہلے، ہم لوگ مرزا قادیانی کا بھی وہ چلے گئے لیکن صاحب شاید، اچھا وہ اسماعیل بھائی گئے ہیں وہ۔ اسماعیل بھائی گئے۔ ہاں بھائی بتائیے ہم کیا مانیں؟ ارے بھائی یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ کہاں ڈسٹرب کر رہے ہو جی؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو بھائی آپ؟
जी डिस्टर्ब हो गया वो, आपने कॉल रिसीव करके आप आए, डिस्टर्ब आप हुए ना। और अकीदे के मसले आप डिस्टर्ब करना कह रहे हैं, अहम मसला है, आप कह रहे हैं आपको काफिर हो जाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम अला मन इत्तबाअल हुदा। यार एक टाइम पे एक बंदे को बात में मिलाओ, इतना टाइम नहीं है कि 10-10 बंदों को 10-10 अहमदियों को आप एक साथ कॉल कर रहे हो। मसला तो ये है कि एक भी अहमदी आने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरी में ये कदम उठाया है। आप ग्रुप में देख सकते हैं कि किस तरह जो है फरार इख्तियार कर रहे हैं। क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ईमान लाने के लिए तैयार हैं, ये बताइए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को माने तो क्या माने? पहले तो तमीज करें, यहूदियों के बच्चे बनने की बजाय अच्छे चीजों की तरह, जिस तरह पहले तो सबसे पहले घर की जो तालीम है उस पर अमल करें। अगर वालिदैन ने अच्छी तरबियत की है तो हमारे वालिदैन ने तरबियत ये की है कि झूठे को झूठा कहो, आप हक समझो, बातिल को बातिल समझो। अगर कोई गलत चाहे तो उसको जो कहते हैं या मैं ना हूं अनिल मुनकर, तो नहीं अनिल मुनकर पर आप बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ कुरान की को माने या ना माने। सबसे पहली बात मुनीर भाई, बात सुने मेरी, आप ऐसा करें कि स्पीकर जो है ना अपने जो मतलब एक ही बंदा बात करे, बाकी सारे स्पीकर बंद कर लें, क्योंकि उससे ये है कि आवाज साफ नहीं आएगी। हाँ तो जुनेद भाई बात कर रहे हैं फिलहाल, और हम स्पीकर बंद कर लेते हैं नासिर भाई। जी ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि तरीक वो होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने अर्ज की है कि तरीकाकार वो होना चाहिए जो सैयदना व मौलाना मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने बताया है। कुरान ने ये तालीम दी है कि कुरान ने बताया, एक मिनट, कुरान ने कहा या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम। कुरान ने कहा वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। कुरान ने कहा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ्फार। हम इस पर अमल पैरा हैं। आप बताइए, आप इस पर जो है राज़ी हैं नहीं, कुरान की आयत को मानते नहीं? आपने और कुछ कहना? हमने कह दिया, बताइए आप इस चीज को मानते नहीं मानते? हम इस पर अमल कर रहे हैं। कुछ और आपने कहना है? हमने कहा तो आपसे सवाल किया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपने कुछ कहना है या हाँ या ना में जवाब नहीं देना? जवाब दीजिए, और क्या कहना है? 10 मिनट की तकरीर करके हाँ या ना में जवाब दे दी। कोई तरीका ही ना हुआ जनाब, अजीब तरीका। मैं आपको एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की तारीफ के बारे में, आपने ये कहा कि कुरान तालीम पर अमल ना, आपने सब्र करो, ये अमल करें या ना करें? सब्र करो। मुझे फोन किया तो सुनना है मेरी बात को। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो पहले। इतराकी किसी और के साथ करना, समझ आई? पहले अभी आप स्टॉप करो, वो बंद जी, स्टॉप। यार आप दलाइल तो किसी के सुन नहीं रहे भाई। नुरानी भाई आप देखिए जानबूझ के अटकलें लगा रहे हैं अपनी बात को पूरी नहीं करते। उनके साथ करना जाके चौक में खड़े। अच्छा जुनेद भाई ने चलने दो, जुनेद भाई चलने दो इन्हें। ठीक है भाई, आप अपनी बात रखें, हम सुन रहे हैं। अगर आपने को बात करनी है पूरे 2 मिनट, आप 2 मिनट बोलिए। जी रखिए, आप चलिए बोलिए। आपने हाँ या ना में जवाब देना है। मैं कह रहा हूँ कि कुरान करीम की तालीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि अगर तुम किसी के झूठे को भी झूठा समझते हो तो जब तुम उनसे मिलो तो झूठा मत कहो, और तमीज वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, वो तरीका आप में नजर नहीं आया मुझे। पहले सबसे मुझे बताएं कि आप तरीके से बात करेंगे, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे, लेकिन तरीक वो होना चाहिए जो कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब बोल रहे हो। अच्छा जुनेद भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको रोक कर बीच में। मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आप मिर्ज़ा को नबी मानते हैं, तो क्या मिर्ज़ा के तरीक़ पर अगर गुफ्तगू करें तो उससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? बहुत बेहतर, बहुत आला। मैंने जो आपको तरीक बताया है, आप अगर तो मिर्ज़ा साहिब कहकर बात कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको नबी नहीं मानते। मैंने ही ऐसे जैसे कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद नबी नहीं मानते, ईसाई और यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। ये सहूलत मैं उनको नहीं दूंगा कि वो आकर मेरे पास बात करें और नबी करीम नहीं। देखिए जैसे हम मुसलमान का साहब को नहीं मानते, हम मुसलमान के ऐसी तैसी को नहीं मानते, इसी तरह मिर्ज़ा को भी नहीं मानते। चले नासिर भाई, हम जो है इनकी बात सुनने के लिए हम चारों नाचार साहब लगा लेंगे, ठीक है? लेकिन तमीज से बात कर, सुन ला मिर्ज़ा, तमीज से बात कर।
बिल्कुल तमीज से बात बंदगी भाई ये सारे मेंटल बैठे हुए हैं इनके साथ टाइम वेस्ट नासिर भाई इन्हें चलने दें। चलने दे ये फजूल लोग नासिर भाई चलने दो, बात नहीं सुनना चाहते। वरना फरार हो जाएंगे। की तालीम में मुनीर भाई ये मतलब ये मामला गलत हो रहा है। ये आप इनको बोलें कि जरा दायरे में रह के बात करें। मुनीर भाई ये जो मुल्ला की तरबियत है ना, ये नहीं दिखानी हमें आपने बात करनी है। मुल्ला का जो लफ्ज है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इस्माइल भाई इन्हें तमीज के दायरे में लाइए आप। मेरे भाई वो तमीज के दायरे में ही हिकमत अमली से बात कर रहे हैं। मैंने ये बात की है कि आप मतलब इस्माइल भाई मेरी बात सुनिए। पूछी है इन्होंने कहा है इन्होंने हमें यहूद नसारा से तशबीह दी है, ये मैंने कहा, ये तमीज से बात नहीं। वरना मिर्जा को क्या कर रहे हैं? मैं तो फिर उलमाए सूफी तशरीह देता हूँ आपकी, फिर आप बताएं। इस्माइल भाई अगर आप उलमाए सू से तशरीह देते हैं, मैंने आपसे उलमाए सू की अलामतें पूछी थी और आप मुझे 3 अलामतें उलमाए सू की नहीं गिना सके थे। जरा बता दीजिए उलमाए सू किसे कहते हैं? आप पूछते बहुत कुछ है पर आप सुनते कुछ नहीं है। अरे मैं सुन रहा हूँ सुनाइए। मुझे करने दे इस्माइल भाई एक सेकंड। बात ये है मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे देवबंदी भाइयों, बात ये है कि ये तरीका आप देख लेना। अब जो गलत करेगा वो हार गया डिबेट। अब आपने अगर बदकलामी करनी है हमारे इमाम हमारे आका व मौला सैयदना व मौलाना मिर्जा गुलाम अहमद साहिब सुल्तानुल कलम अलैहिस्सलाम की शान में अगर आपने गुस्सा किया तो वहाँ पे डिबेट हार गए। आप उनको आप यार एक मिनट सब्र करो। जनेद भाई बोलने दीजिए बोलिए आप बोलिए। वो छू के कुछ नहीं समझते, आप उनको सच्चा नबी नहीं समझते। आप बात अपने आगे बढ़ाइए हजरत, अब बात आगे बढ़ाइए। इसलिए आपके लिए उनको साहब सिर्फ कहना आपके लिए काफी है। ठीक है, हम साहब के लाके हम लगाएंगे। क्या हो गया अब मसला क्या है? जुनेद भाई बात आगे बढ़ाइए इनको। हाँ बोलिए, बताइए आप। गुलाम साहब को हम क्या माने? साहब लगा रहे हैं। साहब गुलाम साहब को क्या माने? जनाब गुलाम साहब को क्या? अरे उसको नाम माने लिखा है अपने आप को जी। अब मैं बताऊं जी, उसको तो नाम मर्द मानना है ना, उन्होंने खुद लिखा है नाम मर्द अपने आप को। मुश्तबा भाई रुक जाइए अभी। हाँ आप आगे बढ़िए। क्या कर रहे हो? हाँ हिकमत अमली से बात करें। साहब को हम क्या माने? अब बोलिए कुरान और हदीस को मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और हेलो जी शायद रिकनेक्ट हो गया था उनका, वो शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है अब? हमें आ रही है लेकिन उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। नीर भाई नासिर भाई जरा जो है क्या कहते हैं, जब हम कहेंगे तो आप आइएगा। ये जो है क्या कहते हैं, हम लोगों को बदतहजीबी का टेबल लगा करके फरार हो जाएंगे, तो इन्हें जरा मौजू पे चलने दीजिए जनाब। अभी आने दीजिए, दलाइल पे इनको आने दीजिए पहले। जनाब के मौजू पर जनाब का मजमूआ हमने भेजा था, जनाब मिर्जा साहब। ये लफ्ज़ इंशाल्लाह बड़ी तहजीब के साथ गुफ्तगू होगी, बहुत तहजीब के साथ जी तहजीब के साथ मेहमान नवाजी की जाएगी। आज तो बहुत अरसे के बाद जो है क्या कहते हैं मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। आज इन्हें इंशाल्लाह जो है लखनवी तहजीब के दायरे में ला करके भाइयों बीच में कॉल आ गई थी एक, माजरत। अच्छा ठीक है, आप बात शुरू कीजिए। अच्छा जी, आप कुरान और हदीस को चूंकि मानते हैं और अपने आप को आपने मुसलमान कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपको मुसलमान ही कहेंगे। प्यारे प्यारे मुसलमान मीठे मीठे भाइयों, आपने हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक ही मानना है। जो आपने टाइटल दिए हैं आने वाले को, उन्हीं के साथ आपने मानना है। और आप एक बात यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे हजरत, आपका नाम क्या है? मामा आपका नाम से मुखातब कर सके। मेरा नाम तलत है। तलत वो उस दिन आप ही थे। हाँ वही है जिन्होंने आपको माइक बंद कर दिया था उस दिन। आप अलैहिस्सलाम की अहादीस की रोशनी में हम मिर्जा साहब को समझेंगे, और मिर्जा साहब के अपने इबारत की रोशनी में क्या समझे? उनके इबारत की रोशनी में भी समझ सकते हैं ना कुछ। आपने उनको किस लिए मानना है? उनकी इबारत की वजह से। अगर उनकी इबारत अच्छी हुई तो आप उनको नबी मान लेंगे, इसके अलावा आपके राह में कोई और रुकावट नहीं होगी। ऐसा ही है। उनकी इबारतें मुतबर हैं, ये बताइए। अगर उनकी कितनी इबारतों पर आपको शुबा और इबहाम है? कितनी इबारतों पर?
एक नहीं 10 ही इबारतें हैं फिलहाल मेरे जो हवाले मेरे पास मौजूद फिलहाल वरना तो ऐसे इबारतें कितने हवाले हैं भाई के पास? हवाले इस वक्त मेरे पास 10 ही हैं। आप बताइए कितने पेश कर दें? 10 हैं या चलिए हवाले पेश कीजिए, हवाले पेश कीजिए नासिर भाई, हवाले पेश कीजिए। कितने हैं नादिर भाई? 10 से के 15 हैं? आटा छोड़िए, एक एक करके आता जाएगा। एक का जवाब दो जी। कितने हवाले हैं नादिर भाई? आप एक एक करके पेश कर रहे हैं, एक एक करके पेश कर रहे हैं, आप सुनते जाइए। कितने हैं? कितने हवाले हैं? चलिए एक एक करके नादिर भाई एक एक करके शुरू कीजिए। तो एक बंदा बोलो और बात कितने से नहीं पहले तलब कितने भाई हवाले हैं? ये 10 है, चलिए 10 है, सिर्फ 10 है अभी फिलहाल 10। पूरे 10 हैं? आधे ज्यादा घंटे हैं के इससे। उनमें से पहला चलिए पेश कीजिए वरना ये चलिए। भाई साहब मैं बात सुन लो, छोटे भाई की बात सुन लो भाइयों, बात सुन लो। कितने हवाले? 10 बताए आपने? हम अभी फिलहाल 10 पेश करते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर शुरू अच्छा कीजिए। एक सेकंड, एक बंदा बोले आप में से और जवाब दे मेरी बात का। आपके पास एक बंदे ने बताया है 10 सवाले हैं। अगर इन 10 नहीं सवालों के फिलहाल तलब छोड़ रहे हैं, फिलहाल नुमानी भाई बात सुने, नुमानी भाई बात सुने। आप ऐसा करेंगे, आप दोनों में से कोई मतलब एक ना, या तो जुनैद भाई या नुमानी भाई, आप दोनों में से कोई एक बंदा मतलब बोले, क्योंकि इस तरह से ना मुझे तो समझ लग रही है ना, मतलब चलिए आप का मतलब मजा नहीं आ रहा है। चलिए जुनैद आप बोल रहे या नुमानी भाई बोले? चलिए हम बोल रहे हैं। जी, दोनों में से एक। हाँ तो जी तलाद भाई आप बताइए बात किस पे होनी चाहिए, आप मौजूद तय कर दीजिए पहले उसी कौन बात साहब है? कौन साहब है? पहले तो नाम नासिरुद्दीन नोमानी साहब, नुमानी साहब, नासिरुद्दीन साहब। आपको नुमानी साहब भी कह सकते हैं। चले जी नोमानी साहब आपके पास कितने हवाले हैं सैयदना हज़रत तक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की किताबों से? हवाले आप इबारात पे बात करेंगे या मिर्जा साहब की इबारात या कितनी है आपके पास? कितनी इबारात? तो इबारात पे किस हैसियत बात करना चाहते हैं ये बताइए, किस हैसियत से? मैं पूछ रहा हूँ जो बात आपसे कि 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, कितने हवाला जाते हैं दोस्त के पास नुमानी साहब? आप किस हैसियत से उस पर बात करना चाहते हैं, उसके बाद मैं हवाले एक तरफ से पेश करना शुरू कर देता हूँ। आप बताइए। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि 20 हैं, 10 हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि बाद में मुझे 10 पूरे करके दो। 9 भी हो सकते हैं, अच्छा 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब भाई अगर आप इसलिए पूछ रहे हैं कि हवाले कितने हैं, तो इस बात से तो बेफिक्र रहें, आपको हवाले 10 से ज़्यादा ही मिलेंगे, बल्कि जितने आप कहेंगे इंशाल्लाह हवाले उतने मिलेंगे आपको। जो आप में से हवाले से नहीं, हवाले पेश कीजिए नासिर भाई, हवाले पेश कीजिए जो आप बात ये है, ऐसे टाइम ना ज़ाया करें। एक बंदा जो आप में से सबसे तेज है, जो हज़रत तक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की किताबों को पढ़ता है, वो बंदा आए आगे, ताकि खामोश रहे ना यार भाई पहले आप मौजू तो बता दीजिए, मौजू तो बता दीजिए, वरना फिर आप राय फरार क्या करेंगे। मौजू स्कैन वाले चल रहा है ना मौजू अब। अच्छा इबारत आपके मिर्जा की इबारत, मिर्जा साहब की इबारतें चल रही हैं। मैंने एक मिनट मैंने मिर्जा साहब की इबारत पर मैंने आपसे जो सवाल किया था ना तलत भाई, हमने आपसे सवाल किया था कि मिर्जा साहब को उनकी इबारत की रोशनी में हम क्या समझे, हमने ये सवाल किया था, आपने इसका जवाब नहीं दिया है। इसका जवाब अब तक आपने सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही था। इसी का जवाब देने के लिए मैंने अर्ज की है इबारत मिर्जा साहब। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप ये मत पूछे कितनी बार मैं ये पूछ रहा हूँ वो अपनी किताबों की रोशनी में क्या है। आप ये मैं कुरान और हदीस की रोशनी में समझूंगा और मिर्जा साहब को कुछ उनकी अपनी किताबों की रोशनी में समझूंगा। रोशनी में सच्चे नबी है। अच्छा सच्चे नबी है जी, बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब दी। ठीक है। हाँ आपने बिल्कुल सच्चे नबी आपने कहा। एक मिनट मैं मिर्जा साहब, हाँ मैं आपको हवाले दिखा रहा हूँ। कितने हवाले हैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ उस वक्त से। हवाले नहीं, मैं एक तरफ से आपको पेश करते चले जा रहा हूँ। एक तरफ से लेकर आखिरी तरफ तक कितने हवाले हैं? हवाला नंबर 1 साहब की किताब मिर्जा साहब रूहानी खजान। हेलो हेलो अब आवाज सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं। रूहानी खजान जिल्द नंबर 2 सफा नंबर। चले ऐसे कर, चले मैं दूसरा तरीका निकाल। हाँ जी, रूहानी खजान जिल्द नंबर 1, रूहानी खजान जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 50। उसमें मिर्जा साहब ने कश्ती नूह, ठीक है 2 किताबें हैं वहाँ पर, मैं इसलिए पूछ रहा था। अच्छा जी, कश्ती नूह, इस कश्ती नूह में सफा नंबर 50 लिख रखे अपने आप को उन्होंने मसीह इब्ने मरियम कहा। मुझे मरियम से ईसा बना दिया गया। ठीक है, मरियम की हालत। हाँ जी हाँ जी, मरियम की हालत है। ठीक है, मरियम से ईसा बना दिया गया, ये मिर्जा साहब ने कहा है। ठीक है, आगे दूसरा हवाला पेश करते हैं। अच्छा इसका क्या करना है? आप सारे हवाले आप पहले पेश करने, मैं सुनता हूँ ना, मुझे फिर अंदाजा हो जाए। एक हो गया। मैं ये पेश करना चाहता हूँ, आपने कहा मिर्जा साहब ने सच्चे नबी है,
अगर एक भी झूठ साबित हो जाएगा, किताबों की वजह से सच्चे नबी हाँ हैं, वही मैंने ये अपने कहा, किताबों आगे की चलें। वजह से, अपनी किताबों की वजह से सच्चे नबी, आपने ये दावा किया। ठीक है, कश्ती वही एक भी झूठ अगर साबित, जिल्द नंबर 18, एक भी अगर झूठ साबित आप कर लें तो जो आप हाँ। कहेंगे वही हम करेंगे। चलें जी, एक किताब ठीक आपने है। बता दी, एक हवाला कश्ती नूह सफा 50 जिल्द नंबर 18। हाँ आगे चलें। अच्छा नासिर भाई, नासिर भाई, नासिर भाई, जो मरियम से ईसा बने हैं, जी जी मरियम से ईसा बने हैं, इसका क्या मतलब है? इससे जवाब दें आप। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन एक है? मिनट मुश्तबा भाई, बड़े भाई आप ये ऐसा नहीं, आप बात करने दें मुनीर भाई। नहीं मैं सिर्फ एक बात कहना मैं चाहूंगा। आपसे बात नहीं करूंगा, नुमानी साहब जी, मैं जी, आपसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जो बहुत सियाने हैं। हाँ जी आप नासिर भाई, आएं, नाम बताएं। नासिर भाई, ये जो आपने बात कही है ना, हाँ जी जी ये बात इनकी किताब है ना तज़किरा, उसमें सफ़ा नंबर 185 पे है, और इज़ाले अवहाम दर रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा नंबर 442, और जिल्द नंबर 3 में भी ये बात उन्होंने कही है कि जाअलनाकल मसीह इब्न मरियम, मैंने तुझको मसीह इब्न मरियम बनाया। हाँ जी जी जी, उन्होंने उसमें लिखा रूहानी खजान से, मैंने कश्तीनों के हवाले से वो बताया ना, उन्होंने बताया अपने आप को मसीह इब्न मरियम, यानी ईसा अपने आप को कहा। जी 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 ठीक है, और 3 हवाले हो गए, मसीह इब्न मरियम, तीन हो गए। हाँ एक, हाँ वो एक इबारत पेश किया अभी तक, मसीह इब्न मरियम कहा उन्होंने अपने आप को। नहीं, नहीं, हकीकतुल अजाना वही आपसे भी की है उन्होंने। रूहानी खजान, हकीकत रूहानी कर खजान, दी है, 3 हो गई है, देखिए, तो क्या गिनना भी नहीं आता यार, 3 हो गई तीन ही है। मान लीजिए, अब इबारत एक है वो। हाँ जी, इबारत आ गई। रूहानी खजान जिल्द 22 सफा नंबर 320 हकीकतुल वही। हाँ जी, हकीकत वही। इसमें इन्होंने मसीह इब्न मरियम जो आएंगे, मसीह इब्न मरियम मसीह मऊद, उनके बारे में इन्होंने लिखा था इसमें, और नीज ये कि मसीह मऊद कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि फौत होगा और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में दाखिल किया जाएगा। एक अलामत बयान की, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में दाखिल किया जाएगा। अच्छा जी, 4 हो गए। मैं उर्दू इबारत इसमें मौजूद है, हकीकतुल वही, मैं उर्दू इबारत पढ़ रहा अरबी में भी लिखा हुआ है उन्होंने अपनी किताब में। हूँ। अरबी वाली मेरे पास इस वक्त मेरे सामने नहीं है, जो उर्दू में, अच्छा ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में दाखिल किया जाएगा। आपने ये किताब पढ़ी, एक सेकंड थोड़ा सा नहीं, आप कह रहे हैं इसमें अरबी इबारत नहीं है, मैं अगर इसमें अरबी इबारत साबित कर दूं और कब्री वाली ठीक है, आप और अच्छी बात है, मेरी बात की और तायद हो जाएगी, मैं जो पेश करना चाह रहा हूँ वही तायद हो जाएगी ना। 6 दफा मेरा मकसद फिलहाल मिर्जा साहब की ही इबारत को पेश करना है, और जो मेरे सामने गए वही पेश करना गए, जो मेरे सामने वही पेश करना है, जो मेरे सामने नहीं उसे पेश नहीं करना है। इसलिए मेरे सामने अरबी इबारत नहीं है, मेरे सामने किताब है, रूहानी खजान का सफा है, वो रूहानी खजान का, ये तो भेज दूं। सफा नहीं, किताब नहीं है, सफा कहे ना यार, सफा कहे, किताब सफा है वही, मैंने वो सफा वही सफा रूहानी, वही सफा का, ये तो भेजूं ग्रुप में। नहीं, सफा ही है ना आपके पास भाई, आपके पास एक सफा है। किताब, पूरी किताब भेजूंगा ग्रुप में, पूरी किताब भेजूंगा ग्रुप में मैं। चले आगे चले भाई, आगे चले। हाँ, इसलिए ये मत कहिए किताब, जो किताब मेरे पास है उसी किताब से हवाला दे रहा हूँ मैं। अच्छा जी, 5 वाले हो गए। एक पहली इबारत पेश की उन्होंने अपने आप को मसीह इब्न मरियम का, दूसरी इबारत पेश की उन्होंने मसीह को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में दाखिल किया जाएगा। तीसरी इबारत, अच्छा जी, और मिर्जा साहब की कब्र कहाँ है? कादियान में। कादियान में। अब बताइए सच्चा कौन है, झूठा कौन? अच्छा, इतनी बात है। हाँ, अब मुझे बताएं, हवाले और तो नहीं है आपके पास? फिलहाल एक इबारत पेश की, एक इबारत का जवाब दीजिए, दूसरी भी इबारत पेश करेंगे। अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, बातें आपने पेश करनी है। मेरा सवाल ये है कि ये जो जितनी भी इबारतें हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास हैं, सारों के मैं जवाब दूं तो आप हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब को सच्चा नबी मान लेंगे इबारतों की वजह से? इन इबारतों के सही साबित हो जाने के बाद क्या साबित होगा? कि वो सच्चे साबित हो जाएगी, मिर्जा साहब की नबूवत साबित हो जाएगी। हाँ जी, इन इबारतों के सही साबित होने के बाद मिर्जा साहब की नबूवत साबित हो जाएगी। जुनेद भाई एक मिनट, किसी की किताब, जुनेद भाई को आने तो ये ज्यादा तेज है। तलत भाई बात सुने, किसी की किताब की इबारत का दुरुस्त हो जाना मुसन्निफ के नबी होने की दलील है क्या? तो शुरू किसने की है ये, इस पर शुरू किसने की? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनकी इबारत दुरुस्त साबित हो जाए मैं नबी मान लूंगा। मैंने झूठा होने का मैं वक्त चाहता हूँ, अब मुझे थोड़ा काम है, इंशाल्लाह ताला मैं फिर आता हूँ।
इजाजत है मुझे? निकल जी जाए। जी इस्माइल भाई आप जा सकते हैं। मैं तलत भाई से पूछ रहा हूँ, आप बताइए तलत भाई, मैं बताता हूँ। किसी की इबारत का दुरुस्त साबित हो जाना मुसन्निफ के नबी होने की दलील है? तो ये शुरू किसने की है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप, हाँ या ना में एक बार जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नहीं आपकी है, दूसरी बात का भी जवाब दे दूंगा। बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। हाँ आप क्या तो कहते मेरा दावा मैंने शुरू क्या किया गया, नुमानी मेरा साहब, दावा आपने पूछा है फिलहाल, कि हम मिर्जा साहब को क्या माने उनकी किताबों की रूह से, आपने पूछा था। हाँ उसका जवाब मैंने आपने नहीं कहा दिया। था, उनकी हर किताब में, बिल्कुल हर किताब के स्कैन का जवाब मेरे पास है। अगर मैं वो सारे दूं तो आप उनको नबी मान लेंगे? मैं ये पूछ हाँ रहा तो हूँ। ये मेरे आप सवाल का क्या जवाब तो नहीं हुआ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने ये पूछा था उनकी किताबों की रोशनी में उन्हें क्या माना। मैं उनकी किताबों को सच्चा मानता हूँ। मैं देखिए, मैं आपको समझाता उनकी हूँ। किताबों को आप सच्चा मानते हैं ना, तो यही है, आप उनकी किताबों को जो सच्चा हाँ आपने मेरे इस सवाल के जवाब में कहा, मैंने आपने सवाल किया था कि आप मिर्जा साहब उनकी किताबों की रोशनी में क्या मानते हैं, आपने कहा सच्चा नबी मानते हैं। दो जुज, एक सच्चा दूसरा नबी, दोनों एक दूसरे को मुस्तलजिम थे बहरहाल। लेकिन एक का सबूत यानी सच्चाई और सच्चा होने का सबूत नबी होने के सबूत को मुस्तलजिम नहीं है। ये बात आप बिल्कुल गिरा से बात कर रख लीजिए, किसी का सच्चा होना उसके नबी होने की दलील नहीं है। अलबत्ता सच्चाई किसी से मुंतफी हो जाए यानी झूठा साबित होना उसके कज़्ज़ाब यानी झूठा नबी होने की दलील है। ये दूसरे जिसको सामने रखकर मैंने बात की थी कि अगर मिर्जा साहब का झूठा होना साबित हो जाएगा तो उनकी नबूवत झूठी साबित हो जाएगी, लेकिन उनका सच्चा होना साबित हो जाएगा तो नबूवत साबित नहीं होगी। इसलिए उनकी इबारतों के दुरुस्त साबित होने के बावजूद भी मुझ पर लाजिम नहीं आएगा कि मैं उन्हें नबी मानूं। अलबत्ता उनकी इबारतें गलत साबित हो गई तो आपको उनकी नबूवत से बरात का इजहार करना होगा। क्यों? क्यों नहीं? ये उनकी इबारतें गलत साबित हो गई तो उनका झूठा होना साबित हो गया। जब झूठा होना साबित हो गया तो नबी झूठा हो ही नहीं सकता। मैं बोलूं अब? हाँ बोलिए आप। अच्छा, किसी के सच्चे और झूठे होने का फैसला मुनकरीन नहीं करते। अगर तो मुनकरीन करें। जी 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 बताइए। नेटवर्क चला गया, फोन लग रहा है उनको। अच्छा हाँ फोन आ गया होगा, आने दो। अभी आपने जो गुफ्तगू की है वो बहुत जबरदस्त है, इसको पकड़े रहिएगा, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू है वो। अपने अपने कॉल कर लीजिए, अपने अपने फोनों में इसे करते रहिए, स्पीकर ऑन करके। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कोई और रिकॉर्ड करे। ठीक है, इस बात से बेफिक्र रहे, मैं कर रहा हूँ उसको। जी ठीक है। बात हाँ जवाब दीजिए, मैंने अभी जो बात कही थी। बात यह है कि आपका मतमय नजर ये है कि आप हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद साहब को नबी नहीं मानते, ठीक है? ऐसे ही है ना? सच्चा नबी नहीं मानते। जी जी उस पर आपने कहा जी, उस पर नबी आपको ही नहीं मानते। हाँ नबी ही नहीं मानते। हाँ जी। उस पर आपको दलील चाहिए। फिर आप किताबों की तरफ क्यों आए जब आपका ये मतमय नजर ही नहीं है? किताबों के स्कैनों के जवाब अगर मैं आपको दे दूं, मैंने किताबों पूछा की तरफ मैं इसलिए आया कि आपने क्या कहा था कि मिर्जा साहब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में समझा जाएगा। उस पर मैंने सवाल किया था कि मिर्जा साहब को उनकी किताबों की रोशनी में क्या समझा जाएगा। क्या आप कुरान को अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की मानते नहीं? बात क्यों नहीं आए आप उस तरफ? आप मिर्जा साहब की बात नहीं मानते? क्या मानता हूँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं ना, तो इसीलिए मैंने पूछा था मिर्जा साहब को उनकी किताबों की रोशनी में क्या समझा जाए। अगर उनकी अपनी किताबों की रोशनी में झूठे साबित होता है तो क्या झूठा समझा जाएगा कि नहीं? समझा जाएगा ना? मैंने इस पर अर्ज की है कि एक तो मिर्जा साहब ने ये बात नहीं की। मिर्जा साहब अपनी तहरीर में फरमाते हैं, ये मैं आपको हकीकतुल वही में दिखा सकता हूँ, इस्लामी उसूलों की फिलॉसफी में दिखा सकता हूँ। आपकी 2 और किताबों में भी अर्ज किया है आपने। मिर्जा साहब की अगर बात माननी है तो वो फरमाते हैं कि हमारे दीन का माखज़ सबसे पहले कुरान, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नती, आपके किए हुए अमल। आप नुमानी साहब मुझे सुने, आपके किए हुए अमल, आपका दिखाया हुआ उसवा हसना हम, और तीसरा है हमारे दीन का माखज़ अहादीस, आपके जो आपने बताई सहाबा को। ये 3 हमारे दीन का माखज़ है। अब आप फैसला करें कि तहरीरों से मैं आपको सारियों के जवाब दूं तो क्या आप उनको सच्चा नबी मानेंगे? आपने कहा नुमानी साहब, आपने फरमाया क्या कहा था आपने? क्या कहा? एक बार और बोलिए, आवाज कट गई। आवाज मैं असल में ट्रेन में हूँ तो इसलिए कट रही है। अच्छा जी जी ठीक है, अब आवाज आप आ रही है, बोलिए। मैंने अर्ज की थी आपसे कि अगर मैं आपको सारी किताबों के स्कैनों के जवाब दूं तो तब भी आप उनको सच्चा नबी नहीं मानते, तो फायदा क्या होगा? 1 मिनट कॉल आ गई, कॉल आ गई थी इसलिए फिर आवाज कट गई। आप बताइए एक बार फिर आवाज।
असल एक सवाल बार बार आ रही है, उसको ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ेगा। आपको कॉल आ रही है? हाँ, मुझे कॉल आ रही है बार बार। अच्छा, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि आपको अगर तो एक किसी बंदे की किताबों की वजह से आप उसको सच्चा नबी मान ले तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। फिर तो मैं आपने जितने स्कैम बताए हैं इन सब के जवाबात मैंने यूट्यूब पर दे रखे हैं। आपका जो पहला सवाल था ना इब्ने मेरा नाम जो है वो एक मिनट, यहाँ पर आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि किताब की रोशनी में सच्चा नबी मान लेंगे। बात नहीं को कहा समझिए। आपने, नहीं कहा आपने, नहीं कहा मैंने कब कहा ये नहीं आपने कहा? कहा, ये नहीं है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। नुमानी साहब मुझे एक बात करने दे यार। अगर आप अब इस तरह करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, मेरे भाई माजरत है। अगर आप इस तरह करेंगे मेरी बात को सुनेंगे नहीं ना तो फिर माजरत, फिर मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। मेरी अर्जी ये है, मेरी गुजारिश ये है कि अगर स्कैनों से जितने आपके पास ये स्कैम्स हैं इनके जवाब देने के बावजूद भी आप इनको ना तो सच्चा मानेंगे ना सच्चा नबी मानेंगे, मेरी तरफ से अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, तो फिर फायदा क्या होगा? अच्छा ठीक है, इसी का जवाब चाहिए ना आपको, इसी का जवाब देने, इसका फिर फायदा क्या होगा? तलत भाई, जी जी तलत भाई, सुनूंगा आपकी बात, आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनूंगा। आप 15 मिनट सुनूंगा, आप बात करें ताकि मुझे मौका मिले किसी वक्त अपनी बात भी कन्वे करने का। नुमानी साहब ये तरीका नहीं है, पता नहीं किसने सिखाया ये तरीका। ये आप भी इधर उधर को बात क्यों ले जाते हैं? बात तब मैंने क्या बात करनी है आप बताएंगे? मुझे मेरी बात करने देना, मैंने आपको रोका कि ये बात आप करें, आप करें जो बात आपने करनी है। जी, आपके कहने का जो मकसद मैं समझा वो ये है कि आपने कहा कि मिर्जा साहब के जो स्कैन में पेश करूंगा इनके सच्चा साबित होने के बावजूद मैं उन्हें नबी नहीं मानूंगा, तो फिर इन स्कैन का जवाब देने का क्या फायदा? मैं आपकी बात से यही समझा के यही कहना चाहता हूँ। जी ऐसे ही जवाब ये है कि मौजूद गुफ्तगू क्या है, मिर्जा साहब की नबूवत, उसके दो तरफ है। एक तरफ मिर्जा साहब की नबूवत का इस्बात और एक तरफ है मिर्जा साहब की नबूवत की नफी। अगर इन स्कैन का झूठा होना साबित हो जाए तो एक जुट तो जरूर साबित हो जाएगा, वो क्या है, मिर्जा साहब की नबूवत की नफी साबित हो जाएगी। और अगर इन स्कैन का सच्चा होना साबित हो जाए लेकिन तब भी दूसरा तरफ यानी मिर्जा साहब की नबूवत का इस्बात फिर भी साबित नहीं होगा, तो कम से कम इस मौजूद गुफ्तगू का एक तरफ मिर्जा साहब की नबूवत की नफी साबित हो जाएगी तो फैसला हो जाएगा। फैसला हो जाएगा तो इससे बड़ा फायदा और क्या होगा कि हमारे गुफ्तगू का फैसला हो जाएगा। आपको क्या चाहिए फिर इससे बड़ा फायदा? इसीलिए इसके ऊपर मैं बात करने को कह रहा हूँ। और कुछ सिलवानी साहब? नहीं, बस मैंने अपने गुफ्तगू 1 मिनट में पूरी की है जी। नहीं अब मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, आप ज्यादा लेना है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये म्यार जो आपने पेश किया है किसी को परखने के लिए, ये कुरान से है तो कौन सी आयत है? कुरान से है, अला लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, कुरान की एक आयत है, झूठों पर अल्लाह की लानत। ठीक, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, और जाहिर सी बात है कि नबी पर अल्लाह की लानत नहीं हो सकती, यानी नबी झूठा नहीं हो सकता। तो ये एक मेयार है कि अगर इस मेयार पर जो उतर गया वो नबी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं इस मेयार पर मिर्जा साहब को साबित कर दूं कि मिर्जा साहब इस मेयार पर हैं तो फिर आपका दावा झूठा साबित हो जाएगा और आपका मानना पड़ेगा कि मिर्जा साहब नबी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी बात करने के लिए। नुमानी साहब, ये जो यहूद हैं और ईसाई हैं ये भी तो यही सेम बात करते हैं ना जो क्या आप बात कर रहे करते हैं। हैं? ये क्या बात करते हैं? नाउजुबिल्लाह नकल कुफर नबाशिद अला याजुबिल्लाह, वो सेम बात करते हैं, यहूद करते हैं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कि वो सच्चे नबी नहीं थे, क्योंकि उनकी कई चीजें वो पेश करते हैं। मैं आपको यूट्यूब पर भेज सकता हूँ। और इसके अलावा क्या साबित हुआ? अल्लाह के यार एक मिनट हमारे साहब, मैं आपकी बात में बोलता नहीं हूँ, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ आपको कि अगर आप बीच में आप बोले तो फिर मैं काट दूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू, ये सारे ही सैयदना व मौलाना मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल नबीयीन खातमुल मुरसलीन अल्लाह ताला की शरीयत के वाले आखिरी नबी को सच्चा नबी नौजुबिल्लाह नहीं मानते, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ठीक है, कि वो सारे झूठे हैं, तो वो भी इस तरह की बातें ही पेश करते हैं, अहादीस को नौजुबिल्लाह तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और उनकी बात मानी जाएगी ये वाली, बताएं मुझे, क्योंकि वो ईमान नहीं लाते।
वो मुनकरीन है, हो गई आपकी बात पूरी? मुशरिकीन है। हाँ जी, आपने बताना ये है, सवाल आपकी बात ये है जी, कि उनकी बात आपका हम सवाल। मानें, वो दो तय करेंगे कौन सा तय हाँ करेंगे। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। जी जी, पहली बात, आपने ये बिल्कुल झूठ बोला कि वो हमारी तरह बात करे। मैंने क्या कहा? मिर्जा साहब की इबारतों की रोशनी में मिर्जा साहब का झूठा होना साबित हो जाएगा तो उनकी नबूवत मुंतफी हो जाएगी, मैंने ये कहा है। और यहूदी ईसाई वगैरह आप अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहीं नहीं कहते, आप चैलेंज करता हो, कहीं भी नहीं दिखा सकते कि यहूदी ईसाई अगर ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातों के रोशनी में झूठे हैं, ये कहीं नहीं कहते यहूदी ईसाई। मुस्तशरिकीन जो भी दावा करते हैं उसको आप उनके उन बातों की रोशनी में झूठा साबित नहीं कर सकते, हम मिर्जा साहब को झूठा साबित कर सकते हैं। सानियन, जिस तरह यहूदी ईसाई आप अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करते हैं, आप हमें यहूदी ईसाई से तशबीह देते हैं, इसी तरह हम भी तशबीह दे सकते हैं कि जिस तरह हम मुसैलमा कद्दाब, असवद आनसी इन लोगों की नबूवत का इनकार करते हैं, इन लोगों को झूठा नबी मानते हैं, इसी तरह हम मिर्जा साहब की नबूवत का भी इनकार करते हैं। चलिए, क्या मिर्जा साहब की कुतुब की वजह से, वो अहादीस की वजह से, वो सैयदना ईसा की रहन सहन की वजह से करते थे। मैं आपको पेश कर दूं तो क्या आप नाउज़ुबिल्लाह ये म्यार तो मिर्जा साहब के लिए रख रहे हैं, दूसरे अंबिया के लिए ये म्यार रखेंगे? अगर मैं आपको यूट्यूब से अभी पेश कर दूं, सामी सामियोल की वीडियो पेश कर दूं, वो अहादीस को पेश करके नाउज़ुबिल्लाह बकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात के लिए। ये म्यार जो आप बना रहे हैं, ये कुरान से है? मैंने पूछा है, आपने कहा नहीं कुरान से है। आपने बताया सिर्फ लानतुल्लाहि वल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। मैंने आमीन कहा इस पर, ये लानत वापस भी जाती है, पता ना आपको? अगर लानत ना हो हकदार तो वो तो वापस जाएगी। ठीक है, अब आप सोच कर ना दोबारा बेशक कॉल कर लें, इस बात को सोच लें। आप चल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ। सुन्नत ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जतुल विदा के मौका पर आपने फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत, इनको थामे रखना। मैंने आपको पेश किया है कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि ये दो चीजें ही, तीन चीजें हमारा मौक़िफ़ है दीन का। आपके दीन का क्या मौक़िफ़ है? खत्म नबूवत कोर्स, जिसमें मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी साहब ने तरतीब दिया। उन्होंने इसमें लिखा है कि कादियानी हयातो फातिह मसीह के अकीदे पर बात करेगा। तुमने उधर नहीं जाना, तुमने मिर्जा साहब की ज़ात पर अटैक करना है। तो ज़ात पर अटैक मैंने आपको बताया है कि यहूदी करते थे सबसे पहले, ईसाई करते थे, ठीक है, आज भी करते हैं ईसाई। ये आपका तरीकाकार ही गलत है मेरे भाई। स्कैमों के जवाब जहाँ तक हैं, पहले स्कैम पर भी मैंने वीडियो बनाई है, हकीकतुल वही वाले स्कैम पर भी मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर लोड है, आईना इस्लाम पर। मैं आपको वो सेंड भी कर सकता हूँ आपके ग्रुप में, अगर आप अर्ज करें मुझे तो। मेरे सारे स्कैनों के जवाब में इसलिए क्योंकि मैंने 22 सवालों के आपके तकरीबन जवाब दे रखे हैं भाई नुमानी साहब। आपकी बात पूरी हो गई? आप लोग ना तहरीरें नहीं पढ़ते, आप लोगों के पास सफा होता है। आपकी बात पूरी हो वाला नंबर। अब मेरी बात, आपकी बात पूरी हो गई? जी आप ये जो है चैनल का हवाला वगैरह हमें मत दीजिए, हमें उससे हमें मालूम है कि आपने वहाँ पर झूठी भरा होगा, इसलिए हमें उसका हवाला बिल्कुल मत दीजिए। आपको यहाँ पर बोलूंगा वो सच है, जो आप बोलूंगा वो सच होगा। आप बीच में आप देखिए, आप अपनी बात के खिलाफ जा रहे हैं। आपने उसूल बयान कि जब बोलूं तो दूसरा ना बोले साहब, आप खुद अपनी बात के खिलाफ जा रहे हैं, उसूल के खिलाफ। आपको मेरी बात सुनना चाहिए ना गौर से जब मैं बोल रहा हूँ। आपको सबसे पहली बात कि आपको उनका हवाला नहीं देना है। दौरान गुफ्तगू डिबेट के दौरान जो भी बात होती है वो सामने होती है, हवाले नहीं दी जाती। मैंने फलां किताब में हवाला दे दिया, सामने बात का जवाब दिया जाता है। पहली बात ये कि आप उनका हवाला ना दें। दूसरी बात कि आपने कहा कि ये मेयार कहाँ से साबित है। देखिए, आप तो कुरान हदीस मानते हैं ना, और अकल को मानते हैं ना, अकल को मानते हैं ना। क्या कोई झूठा नबी हो सकता है? आगे चले। झूठा नबी हो सकता है या जो झूठा रसूल पाक ने खुद झूठा नबी हो सकता है? झूठा नबी हो सकता है? हाँ जी, बताया है रसूल पाक ने, बेशुमार झूठे नबी आएंगे, 30 आएंगे। झूठा नबी हो सकता है, अल्लाह का रसूल हो सकता है। झूठे नबी भी आएंगे, झूठे दावेदार आएंगे। झूठा नबी अलग बात है, यानी मिर्जा झूठे नबी हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है ना। आप उन्हें सच्चा रसूल मानते हैं? बिल्कुल रसूल मानते हैं ना। यही करो, वो जो सच्चा रसूल है वो झूठ बोल सकता है, उसका झूठ हो सकता है, उसकी कोई बात झूठी हो सकती है, या वो झूठ बोल सकता है? नहीं हो सकती, लेकिन मुनकरीन झूठा ही कहते हैं। जब नहीं हो सकती, मुनकरीन झूठा के तो अलग बात है। अगर नफ्सुल अमरी में साबित हो जाए उसका झूठ, तो झूठा कहेंगे कि उसे साबित होने के बाद भी आप नहीं करते, उनकी इबारत की मुनकरीन नहीं करते। मुनकरीन नहीं करते, हम भी कहते हम नहीं करते फैसला, हम उनकी इबारतें पेश करेंगे। आप उन इबारतों की रोशनी में बताएंगे कि झूठा कौन है कि नहीं। समझ रहे हैं?
अब दूसरी बात, क्या जी तीसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के कलाम की रोशनी में पहचाना जाए, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कह दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के आखिरी नबी है। ठीक है, आप अगर से पेश नहीं कर, अपनी तरफ से दलील पेश कर रहे हो, आपकी किताबों से इसकी तायद करें। मिर्जा साहब, आप मिर्जा साहब की बातों से तायद करेंगे या फिर क्या मिर्जा साहब की क्या बताइए, मिर्जा साहब की बात क्या बताइए? खुद ही बात मिर्जा साहब के बारे में हम पेश करेंगे इसकी तायद में, अपनी बात की तायद में, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया खातमुन नबिय्यीन, ये खातमुन नबिय्यीन सिर्फ फतह के साथ, सिर्फ इमाम हासिम के साथ है। अल्लामा तबरी ने तफसीर तबरी में जामिउल बयान सिर्फ इमाम हासिम की किरात में, बाकी में से यानी किराते मुतवातिरा में से 6 किरातों में ये ताके कसरे के साथ ये किराते हैं खातिमुन नबिय्यीन। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, दलील का दूसरा जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह फरमाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह फरमाई ला नबिय्य बादी, यानी इस आयत की तशरीह ला नबिय्य बादी से की है। और ये बात खुद मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह ला नबिय्य बादी से की है। मिर्जा साहब ने इस बात को लिखा है, गहरी यही लफ्ज़ नहीं लिखा, लेकिन मिर्जा साहब ने इसी तरह की बात को लिखा है। आप मानते हैं इस आयत की तशरीह इसी तरह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी किसी तरह का नहीं आ सकता, वही मुनक़ते हो चुकी है। जब वही मुनक़ते हो चुकी है तो क्या नबी हो सकता है कोई? मुझे मौका बोलने का। जी जी आप बोलिए, इसी दलील पे बात कीजिए। आपने आयत जो है आयत खातमुन नबिय्यीन का हवाला दिया और आपने फरमाया है कि सैयदना व मौलाना मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर इसलिए इस तरह की कि ला नबी आबादी, ठीक है, यही कहा ना आपने? अगर मैं सियासता से इसकी तफसीर, इस पूरी आयत की एक तफसीर आपके सामने, वो मौजू भी नहीं होगी, मन घड़त भी नहीं होगी, मुत्तफ़िक़ा अलैह होगी। अगर मैं आपके सामने इसकी तफसीर दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिर्जा साहब की किताब से पेश कर दूं, उन्होंने भी लिखा हो, तो फिर आप माने तफसीर दूसरी को आयत खातमुन नबिय्यीन इस तफसीर के मुखालिफ होगी? हदीस होगी, हदीस है नबी करीम हदीस सल्लल्लाहु होगी, बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की तशरीह जो इस आयत की तशरीह करेगी, अल्लाह के रसूल हदीस, वो इस जो मैंने तशरीह बयान की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी किसी तरह का नबी नहीं आ सकता, वह ये मुनक़ते हो चुकी है, इसके मुखालिफ होगी, यानी इसकी झूठ साबित करेगी। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। मैं आपसे दोबारा मेरी बात सुन ले। मैं कह रहा हूँ कि आयत खातमुन नबिय्यीन वाली आयत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पूरी इसकी तफसीर की है खुद। आपकी जमात के बानी ने भी की है, मौलाना कासिम ननोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी की है, मिर्जा साहब ने भी की है, मिर्जा साहब मौलाना कासिम ननोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफसीर की है, दोनों ने बयान ही अपनी किताब में लिखी है। आपको वो मंजूर होगी? जी, एक इस सवाल कर सकते हैं मेरे साथ? यकीनन जो तफसीर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने की है, वो तफसीर हमें मंजूर है और ये तफसीर भी हमारा ईमान है। इस तफसीर को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इस तफसीर को मानेंगे? हदीस से साबित हो जाएगी जो बेटा आपके, वही आप तो कह रहे हैं, आप तो हदीस दोनों बात दो। ऐसा करते हैं, बात सुने, ऐसा कानून पर ना हवाला नहीं हम दे सकते ना एक दूसरे को, सिर्फ जुबानी बातें हो रही है ना। अब जुबानी ही अजान का वक्त होने वाला है, आप 2 मिनट में उस तफसीर का हवाला दे। मैं मिर्जा साहब की किताब से हवाला दे देता हूँ। मैं मिर्जा साहब की किताब से मैं दूंगा, आपके पास तो सिर्फ सफा है यार। नहीं, पूरी किताब दूंगा ग्रुप में, सफा मत कहिए। अपनी जो तफसीर की 30वीं आयत, हर तरह की वो मुझे पता है, हर तरह की। एक सेकंड मुझे थोड़ा बोलने दे, मुझे एक सेकंड, 1 मिनट आयत बात पेश हो रही करेंगे। मैंने पति है खत्म करने वाला नबियों का। नहीं, आप रुक जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मिर्जा साहब की इबारत पेश करूंगा कि जो वो उनकी सरीह इबारत है, वह ये मुनक़ते हो चुकी है और कोई नबी बिला इस्तिस्ना तमाम अंबिया के खातिम है, और इस खातिम का माने मिर्जा साहब ने ये बयान किया है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मिर्जा साहब की इबारत पेश करूंगा, आप मानेंगे इसको? मैं उसकी वजाहत पेश कर दूंगा मिर्जा साहब की किताब से, वजाहत पेश कर देंगे, यानी मैं करूंगा उनकी किताब से करूंगा, एक गलती के अजाला से करूंगा। गलती का इजाला, चलिए ठीक है, गलती का इजाला फिर उन दोनों को सामने रखे एक तीसरा सवाल होगा मेरा। चलिए आप कर लेंगे। अभी जो हमारे बहस का बात सुने आप। अब मुझे दे टाइम कि आपके पास कब टाइम है, आप यूट्यूब पर आए
हमारा मौजू ये है आयत खातमुन नबीयीन। आपके चैनल पे हरगिज़ नहीं आना है। अभी यहाँ तो चल रही, यहाँ गुफ्तगू चल रही है, यहाँ पर कहाँ भाग रहे हैं आप? हैं जी, गुफ्तगू यहाँ चल रही है, आप यूट्यूब पर यहाँ तो आए हैं आप, यहाँ से कहाँ पर आए हैं आप? यहाँ ही हैं जो हवाला यूट्यूब पे नहीं बोल रहे हैं, हवाला दिखाएं मुझे, हवाला दिखाएं, कौन सी बात है, इसका हवाला दिखाएं, दिखा सकते किसका हवाला देखा है? ये जो चलाक है ना, जरा ज्यादा चलाक बन रहा है, इसको देखो। हाँ भाई, आपको मैं हवाला बात करते हैं ना, आपसे नहीं हो रही बात, आप इल्मी आदमी हैं, ये जो बीच में कूद कूद के आ रहा है, जब इसको उस दिन बुला रहे थे ना, तो वो कहता है हमारे कायद से बात करें, हमारे मुफ्ती साहब, भाई ठीक है, उनकी बात को आप फिलहाल बना रखें। हमारे पास वक्त बहुत कम जुनेद भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। हाँ, जो भी हो, बहरहाल हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आप जो कह रहे हैं, यकीनन मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं देता कहीं, मैं यहीं पे बात करता, लेकिन बाहर फिलहाल यहीं से बहस चलेगी, और लेकिन आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं चलेगी, आपको हमारे चैनल पे आना होगा, क्योंकि उस दिन आप लोगों ने धोखाधड़ी की थी, हमारा माइक बंद कर दिया था, इसलिए आपके चैनल पे नहीं होगी, या तो आप जूम में टिकाए या फिर यूट्यूब हमारे चैनल पे। भाई मंजूर है? इतना पता है कि आप अपना माइक खोल सकते हैं, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता है, आप हमारे चैनल पे नहीं आपको आप हमारे चैनल पर ही आएंगे, आप हमारे चैनल पर तशरीफ लाएं, तो आपका ना पहली दफा था, नुमानी साहब एक सेकंड थोड़ा मुझे भी मौका दें, आपका ना पहली दफा था, वो आपको समझ नहीं थी आ रही, उनके नंबर पे कभी करना कुछ आपका कर रहा कोई हूँ बंदा आता था, कभी कोई आता था, कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था, उज़ैर, आपको पहली दफा में समझ नहीं खाने से आई। पहले फोन उठा लेना। तो इसके लिए अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हुई है तो मैं क्योंकि होस्ट हूँ चैनल का, मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ, और आप दोबारा तशरीफ लाएं हमारे चैनल पर। आपको प्लीज आपकी बात का, आपके हवाले लगाने का, आप अपने हवाले मुझे देंगे, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके हवाले दूंगा, हवाले आप मुझे पहले भेजेंगे मिर्जा साहब की किताब, ठीक है? मैं आपको स्क्रीन शेयर कराऊंगा, बिल्कुल नहीं, और सारा मेरी सुन लें, बेशक आपकी मर्जी है, मैं चैनल पे आना ही मंजूर नहीं है, इसे आप कुछ भी सुना दें। अभी इस वक्त आप जो जुबानी बातें कर रहे हैं ना मेरे भाई, इसका फायदा ही कोई नहीं है ना, ये जुबानी है। दूसरी बात एक सेकंड, जुनेद भाई, एक मिनट, आपने बड़ी जुनेद भाई, आप यार आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक बड़े क्यों हो आप जुनेद भाई, आप छोटे भाई हो, आप सुना बात कीजिए, मुझसे सुना करो, बात कीजिए आप। अब जुनेद भाई बोल रहे हैं, आप मुझसे सुना करो, आप ये छोटा भाई है ना, मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको समझाना मेरा फर्ज है। जुनेद भाई आप सुना कर, हमारे बड़े भाई जुनेद भाई हमारे बड़े भाई हैं, फिलहाल इसलिए मैं मुतकल्लिम, हाँ हमारे बड़े हैं, फिलहाल मैं मुतकल्लिम, आप समझाएंगे पहले हम, फिलहाल आप इधर उधर ना जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़ूम मीट पे आइए या हमारे चैनल पे आ जाइए। आपका कौन सा चैनल है? हम अपने चैनल के लिंक भेज देंगे आपको। मंजूर है आपको हमारे चैनल पे आना, या फिर ज़ूम मीट पे आइए, ताकि सबके हाथ में सब कुछ रहे। मैंने आपको कि मैं आपको जो सवालों के जवाब चाहिए ना, ऐसा ही था ना मिर्जा साहब की किताबों के, ऐसा ही था ना जुनेद भाई? फिलहाल किससे बात कर लेते हैं आखिर में? खातमुन नबिय्यीन की तफसीर आपको ऐसी करनी है कि खत्मे नबूवत ज़माने का इनकार हो सके उससे, आपको ऐसी तफसीर करनी है खातमुन नबिय्यीन की तफसीर पर। चलो ठीक है जी, मैं हमारे पर तफसीर पर हो, ठीक हो गया जी? हाँ, और हमारे चैनल पे हो या ज़ूम मीट पे हो या फिर फेसबुक पे आइए। आपके चैनल का नहीं, हमें हो सकता है हमारे चैनल पर हो, मैं आपको दावत दूंगा, आप अगर फेसबुक पे आ जाइए, मेरी तरफ से दावत है आपको, हमारी तरफ से आपको दावत है, हमारी तरफ से दावत है। अगर आप देखिए, हमारे पास ऐसे दलाल ऐसे नहीं जो आपके चैनल पे पेश कर सके, हम नहीं जाएंगे आपके चैनल पे, बिल्कुल भी। आप हमारे चैनल पे आइए या फिर या जुबानी ही हमें पेश कर दीजिएगा, हम जुबानी ही वैसे करते हैं। हमारे पास किताबों का हवाला दीजिए, मैं किताब में मेरे के पास सामने किताबें होती हैं, मैं देख लूंगा फौरन, मेरे सामने जो किताबें आपसे पेश करेंगे वो किताब मेरे सामने ही हो। अच्छा जी, अब हमारी जो अगली बात है, मेरी तरफ से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आपको भी नमाज पे जाना है, मैं भी अब ट्रेन दूसरी चेंज कर रही हूँ। मैं नुमानी साहब आपसे यह कहता हूँ और आपको बड़े ही मौका दावत देता हूँ, जो कि तरीक है, कुरान करीम का तरीक है,
मैं आपको दावत देता हूँ कि आए और आकर हमारे चैनल पर बात करें। आयत खातमुन नबीयीन की तफसीर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको शौक हुआ तो आप मुझे फिर जो है वो बता दीजिएगा मेरे परसों में, मैं आपसे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा और आपको इंशाल्लाह पूरे एहतराम के साथ बात होगी, जैसे आ जाइए। ठीक है जी, हमने देख लिया था, एहतराम देख लिया था, इसलिए आप दोबारा ला युल्दगुल मुमिनु बिजुफरिन वाहिदिन मर्रतैन हम आपके चैनल पे नहीं जाएंगे। हम फिर भी इनकार कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे आइए या ऐसी जगह सामान जगाइए जिसका ऑपरेट आपके हाथ में बिल्कुल भी ना हो। जी, आपका फिर मोबाइल आपके साथ, मेरा मोबाइल फिर मेरे साथ है। नहीं, मेरा चैनल मेरे साथ। आप फेसबुक पे आइए, चैनल आपके साथ, हमारा चैनल हमारे साथ। आप अगर तशरीफ ला सकते हैं तो फिर आइएगा, ठीक है। अरे भाई अगर नहीं तैयार हो रहे तो जूम पर क्या कोई परेशानी बात हो रही है अगर बुरी आपको? लगी हो, कोई तलत भाई बात जूम पर क्या परेशानी है मैं आपको? माजरत चाहता हूँ, ठीक है भाइयों। अगर आप कोई बात अगर बुरी आपने लगी हो, आपके पास वाकई नहीं, अगर आप वाकई ईमानदारी से बात करना चाहते, डिबेट करना चाहते, आप ज़ूम मीट पे आइए, फेसबुक पे आइए या हमारे चैनल पे आइए, या फिर आप स्टेज लगाइए, आवाम को बुलाइए, स्टेज लगाइए, आ जाइए, ये फिर हम डिसाइड कर लेंगे, ये फिर हम डिसाइड कर लेंगे। मेरा नेट खत्म हो जाएगा, मैं ट्रेन से उतरने लगा हूँ। जुनेद भाई मेरा नेट खत्म हो जाएगा, मैं ट्रेन से उतरने लगा हूँ, तो मेरा नेट खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। मेरे पास भी बात कर रहे हैं, इसलिए अब मैं चलता हूँ। अब हमने ये सोचा था बहुत अच्छा। कुछ हमारी रहनुमाई बात वो जो बुरी लगी हो किसी भाई को माजरत मेरी तरफ से का हवाला दे पाए। हमने सोचा था कि आप हमारी कुछ रहनुमाई करेंगे, लेकिन आप यहाँ से कह रहे हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हवाले नहीं है, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाओ। गए भाई वो गए, निकल गए भाई। अब्दुल नासिर भाई मौजूद है यहाँ पर, लेकिन अब्दुल नासिर कादियानी नहीं है यार, नासिर भाई आपको यहाँ पर चाहिए दिया गया भाई, वो भी गया जी? गया, वो भी गया। ठीक है। अरे चलो बात होगी ना, वो 5 मिनट बाकी है मेरे यहाँ जमात में, इसलिए मैं चलता हूँ। अब आइंदा बात करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने चैनल पे बुलाते हैं किसी तरह उन लोग। चैनल भाई जैसे अब गुफ्तगू हो रही है ऐसे में क्या परेशानी है, ऐसे ही कर लेंगे ना। अरे ऐसे ही कर लेते यार।